کیا ہے، یا یہاں پہ ایسی وہ چیز جو ہم تک نہ پہنچ رہی ہو سینئر لیول تک، وہ کیا ہے، اس کو ہم پہلے مطلب اس کی ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ایک کامن سینس ہو جاتی ہے. تو یہ بھی پوری کچہری کا ایک بہت بڑا رول ہے. میں آپ سب کا دوبارہ سے مشکور ہوں، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ کام ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہ پوری کچہری آپ کنٹینیوسلی رہے گی. ملیں گے، بیٹھیں گے آپ لوگوں سے. ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پولیس کیونکہ آپ کی محافظ ہے، آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہے، اس کا یہ فرض ہے یہ کرنا. اگر کہیں پر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں، کوئی پرپوز کرنا چاہتے ہیں چیز، کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں، تو ضرور بتائیں. میرے آفس میں 24/7 آفس کھلا ہوا ہے. میں ملتا ہوں اور آئی جی صاحب ملتے ہیں، ہم اویلیبل ہیں. یہاں پہ نہیں تو ادھر ضرور ہے. جدھر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ضرور آ کے ملیں. ملنے سے کیونکہ سوسائٹی جتنی ہم سے ملے گی، ہم اس کے ساتھ ملیں گے تو اتنے مسائل ہم اپنے فرائض میں اس طرح اچھے طریقے سے اس کو ادا کر سکتے ہیں جتنا ہمیں آپ کا کوآپریشن اور انفارمیشن ہے. سو کہیں بھی کوئی کوتاہی ہے، کوئی ایشو ہے، وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو دور کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسپیشلی کہوں گا کہ قبضے وبضے کا ایشو ہو، کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی بات نہیں سنی جا رہی، پلیز ہم تک ضرور پہنچیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ود 24 آورز اس میں سے کام کیا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ہم ایک ایک کر کے آپ کوشچن لے لیتے ہیں، جو ہے بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اکارڈنگلی ہم گفتگو کرتے ہیں. ہاں جی ادھر آ جائیں، یا ادھر چیئر ایک آگے رکھیں. چیئر لے سامنے رکھتے ہیں. چل سر مجھے دیجیے. سر میرا مکان تھا اسٹیٹ آفس میں الاٹ سے کسی عمران نام، تو سر اس میں کوئی سامان تھا اور میں موجود نہیں تھا جب ہم نے اس سے سامان طلب کیا، تو وہ کہتا ہے جی میرا جو ہے نا اسٹیٹ آفس سے 4 لاکھ پہ یہ معاہدہ ہوا کہ سامان سمیت میں لوں گا. سر میں کل اپلیکیشن دینے آئے یہاں ڈیوٹی آفیسر طارق صاحب، انہوں نے سر میری اپلیکیشن نہیں لی، اور سر میں 1 گھنٹہ ذلیل ہونے کے بعد واپس گیا. تو سر آج مجھے پتہ لگا کہ آج پوری کچہری لگی ہے. میں آپ کو میں لے لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتے ہیں. اسٹیٹ آفیسر جب کسی کو الاٹ کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے سامان کا ایشو ہے تو اسٹیٹ آفیسر کے پاس آپ نہیں ہیں. سر اسٹیٹ آفیسر کو میں نے اسٹیٹ آفیسر کو اپلیکیشن سبمٹ کی، لیکن وہ بھی موقع پہ نہیں تھے، آج بھی نہیں تھے، ابھی بھی نہیں. میرے بھائی میرے پاس جی قانونی کو طریقہ ہے. اسٹیٹ آفیسر سر اپلیکیشن میں نے اپلیکیشن دی، سر اپلیکیشن دی. میرے بھائی ادھر جائیں گے اسٹیٹ آفیسر کے پاس، اور یہ کیونکہ اس نے یہ آرڈر پاس کیا ہے اور ٹرانسفر کی چیزیں، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کیونکہ وہ آفیشیل ہے. سر وہ میں یہی عرض ہے کہ میں 10 دن ہو گئے اسٹیٹ آفس میں جب بھی جاتا ہوں. ڈن ہو گیا، ہم اس کا حل کرتے ہیں. آپ بیٹھیں. جی 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 سر بیٹھے نا سر. ایک یہ گریڈ 20 کے افسر ہیں سر، 21 کے، ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. ان کا جرم یہ ہے کہ اے پی پی میں انہوں نے 1 ارب 70 کروڑ روپے کی کرپشن جو ہے وہ پکڑی ہے جی. اب یہ 20 دن سے زیادہ سر ہو گئے ہیں یہاں پہ اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے. ایک سابق اس کا افسر کا پیچھے بیان لگا ہوا ہے جی. وہ پہلے ایک ڈی آئی جی کو انہوں نے اس کو ڈی جی ایم ڈی صاحب کو، وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں انہی لوگوں کی. یہ ابھی نا آپ کا ادھر بیٹھے، آپ ابھی اگلے یعنی کہ 2 گھنٹے کے اندر مجھے بتائیں گے، ہم اس کا حل نکالیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ کو ریزالو کر کے دیں گے انشاءاللہ جو ہونے والا ہے. جی جی آپ بتائیں. السلام علیکم سر، میرا نام امین لطیف بھٹی ہے اور G7 سے بلانگ کرتا ہوں. میں پچھلے 10 سال سے میں G7 اور جتنے بھی یہاں پہ تقریباً 5 کچی آبادی ہیں اسلام آباد میں G7 کے علاقے میں جو اپارہ تھانہ کو لگتی ہیں. تو میں پچھلے 10 سال سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے میرا. تو میں صرف یہ ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ سر میں چاہتا ہوں کہ کچی آبادیوں کے جتنے بھی بچے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ اسکولوں میں جائیں، وہ اسٹڈی کو حاصل کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ سر جب سے اس سے پہلے خرم صاحب تھے SHO، انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ ورک کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اشفاق وڈائی صاحب تھے، انہوں نے بھی منشیات پہ بہت کام کیا. لیکن جب سے عدیل صاحب آئے ہیں بہت زیادہ بہتری آ گئی. میں چاہتا ہوں کہ سر جو ابھی بھی جو منشیات کا جو
ये गंदा धंधा चल रहा है कॉलोनियों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर ये जो मंशियात का धंधा चल रहा है सर, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर थोड़ी खासी तवज्जो दें, ताकि मैं चाहता हूँ जो हमारे मसीही बच्चे हैं वो तालीम की तरफ आए, उनका फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। ये जो मंशियात का वो आपने इसमें थोड़ी सी हेल्प करनी है, अभी आप इधर बैठ के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, हम भी अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। ये मिलजुल के करने वाली बात है, इंशाल्लाह हम तो करते रहते हैं, हम मज़ीद इसको तेज़ करें। मैडम इसमें तकरीबन 10 साल से हम इनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको आगे थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हैं, आप आगे इनके साथ ज़रा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। बहुत शुक्रिया सर। वेरी काइंड जनाब। मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, तो 85 से 97 तक उनकी जॉब रही उसमें। फिर ये हुआ कि उनकी कुछ एब्सेंट्स थी। टोकन पे लगाया था आपने जी? टोकन लिया था? वो अभी नया लिया था। नया लिया था नहीं, टोकन लिया था, स्टैंड पे खड़ा किया था, स्टैंड पे किया था, कौन से स्टैंड पे किया? डबल वो मीन स्टैंड की पर्ची स्टैंड की पर्ची है आपके पास, यानी कि जो पार्किंग है? नहीं, वो ग्राउंड का तो पर्ची वाला सिस्टम नहीं इस तरह हर जगह तो नहीं खड़ा करते, ग्राउंड का ग्राउंड पे तो नहीं खड़ा करते ना, हर जगह पे नहीं खड़ा करते, थोड़ी सी एहतियात हमारा करते हैं, बाकी साथी हम ढूंढते हैं, ठीक है? नहीं। आपको पहले भी डीआईजी ऑफिस का एप्लीकेशन दी थी, 12 तफ्तीश ओपन हुई, कुछ नहीं मिला। ठीक है सर, ये हमारा रिपोर्टर भी है। दोबारा रिपोर्टर भी है। दोबारा कोशिश करते, लेकिन आपने भी एहतियात करें, तो ख्याल भी किया, ताला शाला मारें, पार्किंग में खड़ा करें, पर्ची लें, एहतियात करें बड़ा जी। सर, मैं 2 दिन से आपके ऑफिस में जा रहा हूँ, मुलाकात नहीं हुई। तो जैसे मैं इधर बैठा हूँ तो पीछे और मुलाकात कोई नहीं हुई, तो आप लोगों से 2 दिन से हुक्म करें। आज की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं जो मेरी कंप्लेन है वो मैंने खिलाया, मैं उर्दू ऐसे से पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं उर्दू में लिखा आया हूँ। अच्छा, माइक ले ले माइक। मसला क्या है जी? सर कि मेरी प्रॉपर्टी ये मोबाइल से कॉपी निकाली है और सर ये उनका वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उन पे छापा वगैरह नहीं पड़ा है। ठीक है, हम आपको बताते हैं। कैमरा चोरी हो गया, पकड़ा थाना पड़ा। नहीं, तेरा किसी ने ले लिया है या चोरी कर लिया? नहीं, ये उनसे गुम हुआ, उनकी गाड़ी में रह गया। चलो ठीक है, कर लेते हैं, आज हो जाता है जी। नेक्स्ट आ जाए। कोई और जी? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। सर, राना यामीन, चीफ क्राइम रिपोर्टर टीवी टुडे इस्लामाबाद। ये आज साफियों की मेरे ख्याल बोली जाएगी। नहीं, वो बात नहीं, आप ही मेरी ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब आपने कहा मेरे से रब्ता कर लें, लेकिन आप जिस बंदे को कहते हैं वो रब्ता ही नहीं करवाता। अल्लाह खैर करे। अल्लाह का शुक्र है, आपसे नहीं हुआ, बाकी सबसे हुआ है, इस तरह हो जाता है। सहाफ़ी जो है ना, इनके वो मोहब्बतें जो है ना, उनका अपना एक तरीका कार है, तो हम इकट्ठे अलग बात कर लें, वो मसला है, इकट्ठे बैठ के डिस्कस करते हैं। मैंने इधर बार बस मैं और आप इकट्ठे डिस्कस जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुल्तान बहादुर है और इधर G6 का रिहाइश हूँ और सीडीए में मुलाजिमत करता हूँ। ये आप लोगों का जो ये खुली कचहरी का हम अप्रिशिएट करते हैं। ये अगर आपके इल्म में हो सर, तो कुछ अर्सा पहले मस्जिदों में भी आए थे, आईजी साहब की तरफ से हुक्म था कि आप उनकी दलील पे जाके लोगों के मसाइल सुने और उनका हल निकालें। ये जो मैं आपके सामने ये शिकायत आज दोबारा कर रहा हूँ, ये उस दिन पे मैंने की थी, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ना कोई मुझे टेलीफोन आया, ना मुझे किसी ने बुलाया। हुक्म ये है कि सर जी 9/10/2021 को इसी थाने में मेरा FIR दर्ज है, मेरे नाम का 489F दफा है, 25 लाख रुपए का चेक डिसानर है। अच्छा बेहतरीन दोस्त था, उसको चेक दिया था, उसको पैसे दिए थे, चेक दिया, डिसानर हुआ। वो इसी मुल्क के रिहायशी है, घूम फिर रहा है। लेकिन सर यहाँ पर एक तजवीज़ आपको ये भी देना चाहता हूँ कि मुझे आज तक उस FIR का कोई
मालूम ही नहीं हो सका कि क्या उस पर कार्रवाई हुई, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये ताना अपारा। दूसरी सर जी, जिस तरह किसी जगह खुदा न खास्ता कोई डाका हो जाता है, FIR नंबर क्या है? FIR नंबर है 518/21। 518 किसके पास है ये? नहीं, आईओ कौन है इसका? यार आईओ कौन है? आईओ बताएं, मुझे भी बताएं ना, इसको किसने चलान किया है? इसको क्यों नहीं बताया? इसको इन्फॉर्म तो करें। इसका पॉइंट ये है कि मुझे कम से कम जल्दी करें, मुझे बताएं। ये पॉइंट मैंने उस दिन भी रेस किया था। एसपी साहब आपके आए थे, बड़े यंग एनर्जेटिक मैन थे। अभी मुझे बड़ी खुशी जाती तौर पर हुई कि जनाब यंग लोग हमारे पुलिस में आ गए हैं, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि सर जी, इस तरह की FIR होती है ना, जिस तरह कत्ल के मुकदमे में या दूसरे हाई मुकदमात में पुलिस दूसरे जिलों के या दूसरे सूबे के या उनके तानों के साथ अगर कोऑर्डिनेशन हो ना, उनका बेटा उनका भाई अगर उठा के इधर ला के बिठाया जाए ना, तो वो खुद ब खुद पीछे आएंगे। कानून नहीं ना हमें बताता, कानून इजाजत नहीं देता ये। नहीं सर जी, कानून तो मर्डर में भी इजाजत नहीं देता, लेकिन उनके वर्षा आप लोग उठा के ले आते हैं। मैंने बहुत दफा देखा है। मेरी तजवीज़ है, हो सकता है मैं गलत बात नहीं आपसे मनवाना चाहता, लेकिन आपका बात पॉइंट ये कि काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। एग्रीड। इस FIR के लिए जो है ना, मैंने जितने चक्कर इस थाने के लगाए हैं ना, एक एक दिन और एक एक टाइम मैं नहीं बता सकता, तफसीली बात है, लेकिन वो लेकिन आपके इस कुछ कुली कचहरी को मैं CDM मजदूर यूनियन का जो है ना एक अदना सा कारकुन हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोगों को सलाम करता हूँ। अगर आप लोग काम करेंगे इस तरीके से, तो आपने कहा कि आप पुलिस के साथ तावन करेंगे, सबसे पहले हम तावन करेंगे इंशाअल्लाह। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं जिसने इसको इन्फॉर्म नहीं किया, आईओ का नाम बताएं जी। सर मेरी जो शॉप है साथ आईओ का जिसने चलान भेजा है उसका नाम क्या है? इम्तियाज है? किधर है ये? किधर है ये? मालूम करे कहाँ पोस्टेड है। इसका मालूम भाई बताएं जी। सर मेरी शॉप है पीछे ताजर ट्रेडर इजी पैसा डीलर के नाम से। मेरी 20 दिन हो गए चोरी हुई सर, दुकान के तारे तोड़े गए, 6 लाख रुपए चोरी हुई सर। 20 दिन हो गए, अभी तक कोई पता नहीं सर। FIR हो गई है जी? ये पकड़े चलो, हम आपको सर फीडबैक देते हैं, ठीक है? ढूंढ के देते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम भी अली रज़ा है सर। और सर मेरा 2022 में बाइक चोरी हुआ है, अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा सर। और उसके बाद एक दो गाड़ी के टायर और रिम भी सर चोरी हो गई, उसका भी कोई पता नहीं लगा सर। अभी खुली कचहरी का पता लगा। जी सर FIR हुई है और खुली कचहरी का पता लगा तो ये मुझे देना है FIR में देना। मैं सर आपको नंबर दे सकता हूँ। नंबर दे दें, नंबर इधर लिखवा दिया एसपी साहब। इधर आ जाएं आप नेक्स्ट साल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान खालिद अवान है। मैं एक छोटा सा यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मार्केट का। 2 सजेशन देना चाहता हूँ छोटी मार्केटों के हवाले से। एक तो सर जी, छोटी मार्केटें जो हैं वो मगरब के बाद अंधेरे में डूब जाती हैं, वहाँ पे कोई रोशनी का CDA की तरफ से इंतजाम नहीं है, स्ट्रीट लाइट तो होना चाहिए। और दूसरा ये कि सर हमारी सिक्योरिटी कैमरे नहीं है। छोटी मार्केट जो है ये पास ये थाने के कैफेरम मार्केट, इसमें सर सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाएँ। तो दूसरा ये स्ट्रीट लाइटों वाला होगा, उसमें हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। ओके इंशाल्लाह ये बात करते हैं मेरे डी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर हुसैन लाशारी नाम है, एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हमारे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ भी पुलिस की ज़िम्मेदारी है सर? सर अगर हमारा तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की ज़िम्मेदारी है तो हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने 12 दिसंबर 2024 को एक दरख्वास्त दी, जिसमें उन्होंने कुछ करप्ट अनासिर को पकड़ा और उनको जान से मारने की धमकी। सब सुने में तो जी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने एक दरख्वास्त दी
جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے. انہوں نے CDR کال ریکارڈ بھی ساتھ لگایا, اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکی اس لیے دی گئی کہ انہوں نے 1.5 ارب کی کرپشن پکڑی اور جعلی ڈگری والے لوگوں کو پکڑا. سر اس سے پہلے بھی ہمارے اسی ادارے میں ایک MD کو نامعلوم وجوہات پر نامعلوم طریقے سے مار دیا جاتا ہے. جعلی ڈگریاں رات کو کھلتی ہیں, صبح ان کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوتی ہے. نہیں سر, میں ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ 12 دسمبر کی درخواست دی ہوئی ہے اور آج 8 جنوری ہے. اگر ہمارے افسران بالا کا تحفظ نہیں ہوگا تو ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں پہ کیسے پرفارم کر سکیں گے, یا کرپٹ عناصر کو آپ پکڑنے میں آپ کی مدد کیسے کر سکیں گے. آپ گھر سے خیر سے آ جا رہے ہیں 10 دسمبر سے آن نہیں سر, ایک دفعہ جی جی اللہ کا شکر ہے, خیر ہے, حفاظت ہو رہی ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سر ایک میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ وہ جس بندے نے دھمکی دی تھی نا, آج بھی اس نے ہمارے بندوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف 12 دسمبر 2022 اس پہ ابھی تک کارروائی نہیں کرتے ہیں. ابھی فیڈ بیک دیتے ہیں, اس کا کرتے ہیں. ڈونٹ اس طرح ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم جی. سید فیاض حسین شاہ, ڈپٹی جنرل سیکرٹری G9 مرکز. ہمارے SHO صاحب ہیں ناصر منظور صاحب, ماشاءاللہ سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور انجمن تاجران G9 مرکز کے ساتھ بہت تعاون ہے, اور G9 مرکز کی جتنے بھی تاجر برادری ہے ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ماشاءاللہ. اور خالد صاحب کا بھی اور آپ کی بھی جو SP صاحبان ہیں ان کا G9 مرکز کے ساتھ بہت اچھا سر عمل ہے. ان کا گزارش یہ سارے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ جیسے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھانہ بنا ہوا ہے. ہمارے G9 مرکز کا جو سر تھانہ ہے وہ کافی تقریباً 8-9 ماہ سے سر اس کی حالت بہت خراب ہے سر, کیونکہ نہ تو وہاں پہ ہم خود بھی جاتے ہیں, کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. الحمدللہ سر 6 سال سے ہم ریگولر جیت رہے ہیں, اور ابھی پھر الیکشن اب ہمارے آگے. اور جہاں تک ہمارے سے انجمن تاجران G9 مرکز ہمارے پریزیڈنٹ راجہ جوید اقبال صاحب, سر جتنا بھی تعاون ہوا سر ہم اپنی طرف سے کریں گے, اور سر اس کو فوری طور پہ سر اس کو ٹھیک کروایا جائے. اور سر دوسرا ایک ہے کہ سر وہاں پہ ایک تو F10 سے اور باقی سائڈ ایریا سے مانگنے والے اور یہ جو باقی دوسرے ہیں کچھ لوگ بے شمار سر وہ سارے کے سارے سر G9 مرکز میں آ گئے. تو ہماری جو ہمارے SHO صاحبان ہیں ان کی تو بہت ایفرٹس کر رہے ہیں وہاں پہ, لیکن سر پھر بھی اس کے لیے کوئی ہمیں نفری دی جائے. اور میں آپ کا جو ایک پیج ہے سر اس کے اوپر اکثر ڈالتا بھی ہوں کہ ایک اتوار بازار سر بائک کا لگتا ہے, اور بڑے عرصے سے کافی چوری کے بائکس اور آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں. میں ریگولر روٹین سے جو آپ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے میں اس میں ہر سنڈے کو ڈالتا ہوں. پولیس تو آ جاتی ہے لیکن وہ دوبارہ آ جاتے ہیں سر. تو یہ تھوڑی سی ریکویسٹ ہے سر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرا نام شاکر ہے, میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیوٹی کرتا ہوں, میڈیا سے کیمرہ مین ہوں. سر میرا بائک چوری ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر سے, تو 29/2/2024 کو چوری ہوا ہے سر. اس کا ابھی تک کوئی حال نہیں نکلا. کیمرہ بھی سامنے لگا ہوا ہے سر, کیا ہے کیمرہ بند ہے اور چلتا نہیں ہے کیمرہ. اوکے, آپ سے یہ رابطہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں سر. کاروباری حضرات جو ہیں وہ ایک مشکلات ان کو آ رہی ہے جب وہ موبائل خریدتے ہیں. اکثر دکانیں ہر مارکیٹ میں 100 دکان موبائل کی ہے. اب نہیں لکھا ہوتا چور کے ماتھے پہ کہ یہ چور ہے. وہ جب بیچنے آتا ہے تو بڑے اچھے کپڑے پہن کر آتا ہے, ساتھ وائف کو بھی لے کے آتا ہے. SOPs کے تحت ہم اس کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں. شناختی کارڈ جب پولیس کو دیا جاتا ہے, پولیس شناختی کارڈ کو نہیں دیکھتی, وہ کہتی ہے موبائل واپس کر دیں. اب اگر 1 لاکھ روپے کا موبائل اس نے 80,000 کا خریدا ہے, 70,000 کا خریدا, ہاں اگر اس نے 10,000 کا خریدا ہے تو پھر تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ واپس کر دو, تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو. اگر 80,000 کا خریدتا ہے تو پھر سر اس کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ موبائل بھی اسے لے لیا جاتا ہے, اس کو 6 گھنٹے تھانے میں بھی بٹھایا جاتا ہے. یہ چیزیں کچھ ٹھیک کرنے والی ہیں جو بہت ضروری ہیں. وہ موبائل بھی دے دے, اس کو بٹھایا بھی جائے. اور چور کی تو موج لگ گئی سر کہ چور کو آپ آ کے کہیں کہ اس نے چوری کیا ہے, وہ فارغ ہو جاتا ہے, دکاندار ادھر بیٹھا رہتا ہے. ایک سر یہ ہے. دوسرا سر مصالحتی کمیٹیوں میں کچھ تبدیلیاں لائیں اور ان کو فعال کریں. یہ بڑا اچھا کام تھا, لوگوں کے لین دین کے مسئلے حل ہوتے تھے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر تھانوں میں
एक एक दो दो वही लोग रोजाना की बुनियाद पे बैठे होते हैं, 18 लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन चंद लोग ही उसमें काम कर रहे होते हैं। इसको भी थोड़ा सा मेरी गुजारिश है आपसे। तो तीसरा बेगर्स जो हैं चौकों में से गायब हैं, उधर से वो मार्केटों में आ गए। जो आपका स्क्वाड है उसको थोड़ा सा एक्टिव करें कि मार्केटों में कुछ ऐसी वो गाड़ियां लेके ऊपर स्पीकर लगा के मांगने वाले जो प्रोफेशनल हैं, खवातीन बच्चे लेके मार्केटों में बैठी होती हैं फुटपाथ पे, उनका भी कोई कमा किया जाए। बहुत मेहरबानी। तो चौथा, निचली सतह पे कुछ अफसरान के लहजे थोड़े से अच्छे करने वाले हैं, वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाह। पहले तो सामने कमेटी वाला ये शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, ये ज़रूरी भी है, हम आप सब नोट करेंगे और आप अपना नोट करेंगे। नंबर 2, आपने वो मोबाइल्स वाली बात की है। मोबाइल्स में जब आप मोबाइल लेते हैं ना, तो मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है, तो बराए मेहरबानी वो IMEI नंबर एक हमारी एप्लीकेशन है, उसमें डाल दो, पता लग जाता है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, वो ये तो अभी चीज़ आई है ना, मैं कहता हूँ ठीक है, पिछले को छोड़े मोबाइल आगे चलाते हैं ना, ऐसे आप डेवलप कर रहे हैं। जी, मतलब इसको थोड़ा सा बेहतर है, बेहतर हो नहीं सकता ना। जब आपका मोबाइल 1.5 लाख का चोरी होगा, मैंने खरीद लिया है, तो सामने मैं आ गया, मैंने इस भाई से खरीद लिया, ये भाई तो गायब हो गया मुझसे। वैसे बात तो सुनिए, गुजारिश सुनिए, आप मेरे पास जब पुलिस के पास चढ़ेंगे कि मेरा 1.5 लाख का मोबाइल दो, ऐसे ही बातें हो रही हैं, किसी का बाइक गया, किसी का मोबाइल गया, किसी की गाड़ी गई, तो हम आपको यकीनन ये कहेंगे कि आपने ये जिससे लिया है, तो शरीके जुर्म अगर आप 100% नहीं है तो 1-2% तो है ना, तो आपको 6 घंटे थाने में बिठाना इतना बिला जवाज़ नहीं है। मतलब मुसीबत ये है कि हम चाहते हैं कि मेरा मोबाइल चोरी हुआ है फ़ौरन मिले, लेकिन अगर मैंने चोरी का लेके आगे दे दिया तो मुझे कोई ना पूछे। मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, हम सबको ने ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ 100% कि ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, बट अगर किसी चीज़ में कोई लीगल चीज़ आती है तो उसमें हमें एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए। उसको आप नेगेटिव ना लें कि मैं अब मोबाइल आपके पास से रिकवर हुआ है, मैं या मेरा आपका चोरी का मोबाइल मेरे पास से रिकवर हुआ है, तो मैं जितना मर्जी कहूँ कि मैं हाजी हूँ, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने डील की है, मैंने ये किया, लेकिन मैं उसका जवाब दे तो हूँ ना, मुझे जवाब देना पड़ेगा। वो जो जवाबदेही है वो थाने में बैठ गई होती है, पहली बात। दूसरा ये कि थाने वालों को बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, हर चोर को, डाकू को, ताजिर को, मुअज़्ज़िज़ को, उनको एक बाइफिकेशन करने की ज़रूरत है कि किसके साथ कैसे डील करना है। एक चोर है, एक बीच में वैसे फंस गया है, तो जो वैसे फंस गया उसको उस तरह डील करें, ये हम बिल्कुल इनको कहते भी रहते हैं, मज़ीद भी कहेंगे। लेकिन उसमें एक IT की गैजेट आई हुई है, अगर आप उसमें डाल देना उसका IMEI, फ़ौरन पता लग जाता है ये चोरी का है कि नहीं है, क्योंकि वो हमने उसमें वो लगवा देते हैं, जब मोबाइल चोरी होता है तो उसकी IMEI हम ट्रैकिंग पे लगा देते हैं, वो ट्रैकिंग में आ जाती है। तो ये तमाम ताज़ा ज़रात वो करें। अगर कोई मिस हो जाता है तो देखना इतना बड़ा हर रोज़ मोबाइल, क्योंकि बहुत आम हो गया, बहुत चोरी होते हैं, शदीद मोबाइल चोरी होते हैं, जाते जाते लोग छीन लेते हैं, कोई फेंक गया, कोई घुमा गया, कोई वगैरह वगैरह। तो FIRs बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें खुदा न खास्ता मैंने तो चोरी नहीं की, आप सामने ला के बिठा दो तूने चोरी की होगी तो मैंने नहीं की। सिर्फ मेरा मकसद छोटा सा था कि वो चोर बच जाता है, उसका खानदान बच जाता है। चोर नहीं बचता, चोर मिलता नहीं है ना, चोर गायब पकड़ा जा, हमारे बंदे के थ्रू पकड़ा जाता है। चलिए एक पकड़ा गया ना, मैं जब आप पकड़ा गया तो मसले हल हो गया ना। नहीं, वो जब पकड़ा जाता है ना सर, उसको छुट्टी हो जाती है, इसका 80,000 या लाख रुपया जाया हो जाता है दुकानदार का, चोर पे नहीं डाला जाता कि वो मोबाइल आपने लिया होता है ना, जी डन हो गया, तो मोबाइल हमने रिकवर करना है। अब हमने चोर से पैसे लेके आपको देने हैं, जी, मसला ये है। ये होगा। तो चोर के पास से पैसे नहीं मिलते। चोर वो गरीब होता है जो चोरी क्यों करता है, वो लाएगा लाख रुपया खुदा न खास्ता चोरी करके, तो वो ले जाएगा, वो बीवी दे, ये वो फिलॉसफी जो समझने की जरूरत है, इसमें हमारी मजबूरी समझे। अगर तो पैसे लेके हम खा गए तो यू शुड आस्क अस, और अगर पैसे मिल ही नहीं रहे वो उनके पट्टे के पास हम बैठ रिकवरी, पुलिस कोशिश करे, रिकवरी हो सकती है, ठीक है, नहीं करती है कोशिश, और इसमें बंदे बहुत ज्यादा हिचेज हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन ये बैठ के बातें करने वाली हैं, ये इधर खुली कचहरी वाली हैं, ये वो वाले फिलॉसफी हैं जो कानूनी तौर पे इश्यूज हैं। हेलो जी मेरी जान, सॉरी मैं खुली कचहरी में था, तारिक भाई की कॉल आई कब। भाईजान मैंने कह दिया है, बंदा बेचें और वर्जन दिलवाएं, जो नहीं करता मुझे बताया जाके ऐसे जो मिले, ये तो नहीं हो सकता। उसका नंबर मुझे भेजें ज़रा, मुझे नंबर भेजें, अभी मैं करवाता हूँ। जी भाईजान मैं करवाता हूँ। जी
तो ये डिस्कशन है, इसमें कानूनी चीज़ है बहुत ज़्यादा। हम एक बंदे को रखते हैं रिकवरी के लिए, क्यों रखें? वो लीगल हमें कानून इजाज़त नहीं देता। आपसे अलग एक मीटिंग कर हाँ, तो ये कुछ कानूनी चीज़ें हैं, कुछ वो हैं जो हिचेज़ हैं। जी हज़रत इकबाल नाम है सर मेरा, मैं सदर हूँ मेलोडी मार्केट का और मुसादी कमेटी का भी यहाँ का सीनियर मेंबर हूँ 2013। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को खुश आमदीद। खालिद अवान साहब के साथ काफ़ी अर्से से हमने काम भी किया है इधर, और बाकी भी दीगर जो हैं हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी काम किए। सर 2-4 गुजारिशात हैं। एक तो मुझे ये देख के आज खुली कुचहरी थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि जो 2013 में कुचहरी लगती थी उसमें लोग कम होते थे। पुलिस तो अपना काम कर रही है, रिक्वेस्ट ये है कि अगर नफरी बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर 60-70 की नफरी है तो उसमें 10-15 लोग जो हैं वो तो आपके ऑफिस वर्क के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो आपकी फील्ड के लोग हैं वो बहुत कम है। मेलोडी मार्केट के हवाले से सर जो गुजारिश है वो ये है कि हमारा एक ब्लॉक है 21 नंबर ब्लॉक, इसमें मैं पिछले कोई 5-6 साल से अफसोस भी होता है कि मैं थाने में बैठा भी होता हूँ, सबसे तलक भी हैं, IG साहब तक मैंने दरखास्तें की हैं, कम से कम 70 से 80 बंदा 21 नंबर ब्लॉक इस सेम मार्ट के साथ है। ये रात को सोते भी हैं, बदमाशी भी करते हैं, 2 कत्ल हो चुके हैं और 1 इक़दामी कत्ल हो चुका है। तो उसके बावजूद ना तो इनको पता है ना कुछ है, उसके बावजूद बैठते हैं और उल्टा हमें उनकी मर्जी से दुकानें खोलने की इजाज़त है। शाम 7 बजे उन्होंने आके हमारी दुकान के आगे ढेरे डालने हैं सर। क्या शाम तक ठीक हो जाएगा सर? सर थैंक यू। सेकेंडली सर मैं विक साहब से गुजारिश है कि बाकी जिस मार्केटों में आपने अपनी जो टीम है वो लगाई होती है, मेलोडी मार्केट में सर बहुत छोटी सी मार्केट है, इसमें खाप खाना बहुत हो जाता है, गाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ लग जाती हैं। अगर यहाँ भी आप अपनी एक टीम हमें दे दें तो हमारे लिए सर बहुत आसानी है। इंशाल्लाह ये भी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? जी सर। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मलिक तैमूर ज़फ़र जी अपारा मार्केट का ताजिर हूँ और ये मेरी FIR नंबर है जी 508/24। ये जनाब मैंने एक फ़ाइल सेल की थी, ज़मींदार ग्रुप है F11 का, तो उनका सर वो टाइम पूरा हुआ है, चेक डिसऑनर हो गया। मैंने थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई FIR में, तो FIR जिस वक्त दर्ज हो गई है उसके बाद सर रेड भी किया उनके ऑफिस में। अब ये जो टोटल घपला है ना सर, वो कोई तकरीबन वो पार्टी इस तरह की है कि उनका कोई तकरीबन 1.25 अरब रुपए के करीब मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने पैसे हथियाए हुए। अब ये कुछ टाइम तकरीबन ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक जो था ना सर, ये 24 का वकूआ है, लेकिन 2-3 हफ्ते पहले तक व्हाट्सएप पे सर सवाल जवाब होता है। अब वो मैं जिस वक्त आके थाने में बात करता हूँ तो सर वो कहते हैं जी कि हमारे पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि हम उनकी कोई लोकेशन ले सकें, हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। तो सर ये इस हवाले से इंटरनेट का नहीं होता है, सही कह रहे हैं। इस हवाले से गुजारिश है कि अब आज भी सर मुझे इस चीज़ का पता है, मैंने बताया भी है कि उसका जो सगा भाई है वो इधर सर जॉब कर रहा है सरकारी इदारे में, लेकिन मुझे सर वो आगे से यही बात, और वो इन्वॉल्व है, वो उसी ऑफिस में बैठता है, लेकिन सर वो यही बताया जाता है, सर वो यही बताया जाता है कि हम कानून ऐसा है जिसकी वजह से हम उसका सर वजाहत नाम है सर मेरा। अच्छा सर 6 महीने जी सलाम सर मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ ज़ैबस यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया हूँ, इस्लामाबाद से, एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ सर। सर हमारी फैमिली आ रही थी इस्लामाबाद और गाड़ी थी, हमने किसी एक्स पर्सन से गाड़ी खरीदी तो वो गाड़ी टेम्पर निकल आई, उन्होंने गाड़ी रोक ली। उसके बाद इन्होंने हमसे मामलात थाने नून वालों ने जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल के अंदर उसने सारे पैसे भी ले लिए, और लेकिन उसके बाद भी फिर हमें अगवा किया। अभी तक वो जो पैसे तो हमने उसको जो गाड़ी ठीक है गलत हमारी निकल आई, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो जिससे हमने खरीदी आया उसको भी तो कानून के दायरे में लेके आया जाए, उसको भी तो जो आप कितना पढ़े हुए हैं? मैंने MS किया सर। तो एक कानून है वो पढ़ना है, मुश्तरी हुशार माश। अच्छा जी। तो उसमें बेटा जब बंदा खरीदता है कोई चीज़ तो उसकी जिम्मेदारी है चेक करना। अंकल वो गाड़ी हमने यहाँ से वाले साहब के बस बहस नहीं, मेरी जान हम बैठ के अलग कर लेंगे और बड़े सुन रहे हैं। जब आपके पास गलत चीज़ है, आप उसकी ऑनरशिप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ये मैंने एक चोरी की चीज़ ले ली, मुझे नहीं पता, तो वो एक पहला तो राइट आपका है, हम आपको बिल्कुल लीव देंगे जो बनता है, लेकिन पहला राइट आपका है, आपने ठीक करना था। दूसरी बात आपने बताई आपसे पैसे किसने लिए, किसने लिए? ये इमरान SI ने। कहाँ से? ये एंटी कार लिफ्टिंग सेल के अंदर होता है,
PSI है। क्यों पैसे दिए आपने? उसने बोला था कि भाई हम आपको गाड़ी भी निकाल के देंगे और FIR भी। कितने पैसे दिए थे? 3 लाख रुपया सर। है सबूत सबूत कोई? उसने कैश थाने के अंदर हमसे मंगवा के दी। कोई सबूत नहीं है? नहीं, और कोई जो साथ एक और मेरे साथ अपना बंदा था वो जो उसने उसके साथ हमने ये उसने बुलाया था अपारा के पास अपने घर के पास, वहाँ पे उसने। कौन सी गाड़ी है? प्राडो गाड़ी है। कौन सी प्राडो? 96 मॉडल प्राडो है। ठीक है, मुझे जरा डिटेल्स दे दें। और ये जो इमरान है इसको अभी सस्पेंड करके इसकी इंक्वायरी करें, इसको बुलाएं, अभी इधर बिठाए जाने नहीं देना, ये अभी आज इंक्वायरी करके मुकम्मल करके जाने दें। ठीक है जी, आपने जाना नहीं, उसको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, उसके भी हम इंक्वायरी करेंगे। जी DIG साहब, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, एक आपसे बात करना। बैठ जाओ, हौसला। ओ भाई रिलैक्स, मेरे रिलैक्स, ए पानी पी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वो बोल रहे हैं बाद में। DIG साहब, आप जब से इस्लामाबाद में आए हैं माशाल्लाह बड़ा पुलिस को भी एक्टिव किया, पुलिस कचहरी का सिलसिला भी शुरू किया। मेरा नाम रशीद मलिक है और मैं 3 दफ़ा इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। आपसे मुलाकातें भी हुई हैं। मुख्तसर बात ये है कि जब आप पंजाब में थे वहाँ पे भी आप ये बात करते थे कि पुलिस कल्चर को चेंज करना है, और इस्लामाबाद में भी आपने ये माशाल्लाह से अलम बुलंद किया। इसी थाने का सर बुरहान ASI, मैं 1 महीना पहले उन साहब के पास आया एक एप्लीकेशन लेकर, तो उन्होंने कहा जी कि आप तो सहाफ़ी हैं, तो सहाफ़ी मर जाएगी। सवाल ये है कि सहाफ़ी भी मिट्टी, प्यार से कहा होगा, इज्जत से कहा होगा कि आप सहाफ़ी हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। वो देखिए जी, इज्जत की निगाह से आप इस प्यार के लिए जो ग्रीवेंस है उसके लिए हम सुख साईं के दरबार पे जाएं सर, मैंने कहा क्योंकि आपका तलक चन्योट से है, तो वहाँ सबसे बड़ा दरबार तो वही है। आप सहाफ़ी है तो सहाफ़ी होने को इज्जत है ना, ये जैसे को बंदा कहेगा आपका क्रेडिट है। ये तो सर मैंने ज़िमनन बात कर दी। आज हम आए थे, आपसे बड़ी उम्मीद है कि हमारा आपकी प्रेस रिलीज हमें रात को 12 बजे भी मिलती है, तो बीइंग ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी के हम रात को जागते हैं और आपकी खबर को प्रायोरिटी पे जारी करते हैं, लेकिन हमारे MD को सिर्फ इसलिए धमकियां दी टाइम सर कुछ ना कुछ सानू जी जनाब। अब आप शुरू, इधर मेरे तरफ देखिए, कौन छोड़ो जी जनाब। वो इमरान है ऐसा ही कहता है कि मेरे साथ भी बात होती है, इनका दोस्त सर ये आप सर हाँ बताओ सर वो कह रहा था कि DIG साहब ने भी गाड़ी चलाई भी, उनका भी फ़ोन आते रहे हैं, तो DIG साहब जो हैं उनने कहा ये गाड़ी नहीं किसी को देनी, ऐसी करके बातें हमारे साथ वो मेल प्रैक्टिस ऐसे वो हम कर लेंगे। आपका जो गाड़ी आपकी टेम्पर्ड है उसका कानूनी जो चीज़ है वो चलेगा, वो कोई भी चलाए या ना चलाए, हमने पैसों का हिसाब करना है, वो हो जाएगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम हैदर है और मैं इस्लामाबाद का सोशल वर्कर हूँ और एडवोकेट भी हूँ पेशे से। सर 2 सजेशंस हैं, एक G7 और G8 जिधर से एक्सप्रेस हाईवे टच होता है इनको, एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी ऑन योर टेबल, ऑन योर ऑफिस डेस्क टेबल, कि वहाँ पे परमानेंट चौकी दे दी जाए, क्योंकि इसकी जो चोर है ना सारे, मतलब मैं इस पर खुद इसलिए क्योंकि मैं इस थाने के साथ मिलकर भी यहाँ की लोकल कम्युनिटी में इस चीज़ को, नशों को भी जो आप लोगों ने मुहिम स्टार्ट की उस पर भी वर्कआउट कर रहा था और पहले भी किया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हो सकती है, क्योंकि इनसे दोनों से मेन रोड अटैच होती है और सेफ सिटी एक हद से आगे जाके उधर से वो फिर ट्रेस नहीं हो सकते। सिमिलरली गाड़ी चोरी हो या कोई मतलब नशों की एक्टिविटी या XYZ कोई भी एक्टिविटी हो। और सेकेंडली सर ये अदील शौकत साहब जैसे ऑफिसर्स हाईली कॉम्पिटेंट जब से इस थाने में आए हैं, हाईली कोऑपरेटिव, इस तरह की आपकी टीम और सर आप थैंक यू वेरी मच। मेरी एक आगे खुली कचहरी है, दोबारा करें, हमने रूरल में जाने, हम दोबारा आएंगे। एक बात, अगर किसी की कोई चीज रह गई है, इधर ही बैठे हैं SP साहब इज हियर, और ये जिनकी खुली कचहरी में क्वेश्चन और चीजें आई हैं रात तक आपको ये रिजॉल्व करके देंगे।